ਕਨੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ। ਧਨੰਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲੋ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਆ, ਐਮ.ਪੀ. ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਆ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੇਸਰ ਆ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਵਰਡਿਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। 5 ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 9 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਨੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਜਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਡ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਲੀਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਚੂ ਦੀ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਚੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 2019 ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਤੀਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਐਪਲੇਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੀ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੈयद ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਜੂ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ 1949 ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ 5 ਜੱਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, 4 ਜੱਜਿਸ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਊਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਨ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਏਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਵਰਸਸ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ।
हंसराज खन्ना ने उस वक्त उस जजमेंट दे विच जिहड़े 4 जजिस सी उन्हां तो उल्ट जजमेंट दित्ती सी। उन्होंने अपना डिसेंट दिता सी कि मैं इस दे खिलाफ आ, मौलिक अधिकार है जिहड़े आम ह्यूमन राइट्स हुंदे आ, बंदे दे अधिकार हुंदे आ जीण दे, वो खत्म नहीं हो सकते। उन्होंने पूरी तरह बिल्कुल सुरजीत रखा जाना चाहिए, उन्होंने जीवित रखा जाना चाहिए। कहण दा भाव आ कि उहदा दे अधिकारां दा हनन नहीं होना चाहिए। और तुसीं देखो उन्हां दिनां दे विच इसे जस्टिस HR खन्ना दा एक तरह का मौका सी बनन दा चीफ जस्टिस, पर उन्होंने फिर चीफ जस्टिस बनाया नहीं गया। हालांकि वो सीनियर सी, उन्हां तो एक जूनीयर जज नूं, इंदिरा गांधी की मैं गल कर रहा, उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर सी, उन्हां दिनां दे विच एक जूनीयर जज जस्टिस MH बेग, MH बेग जिन्हां दा पूरा नाम सी मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, उन्होंने फिर भारत का चीफ जस्टिस बना दिता गया। सो कहण दा मतलब जो जस्टिस मार्कंडे काटजू ये गल कह रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ नूं लगदा सी कि जे मैं विरोध दे विच कोई फैसला दूंगा या अपना डाइसेंट नोट दूंगा तो हो सकता ये सरकार मैनू चीफ जस्टिस ना लगन देवे। एक गल ये अगे चलते हैं थोड़ा जा, बल्कि अपन नूं थोड़ा पिछे जाना पऊगा। 11 सितंबर नूं दिल्ली का स्थान सी, निवास स्थान सी DY चंद्रचूड़ का, भारत के चीफ जस्टिस का, तो गणेश की पूजा कर रहे सी। सारे ने वो तस्वीरां भी देखिया होणियां। अचानक उन्होंने घरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच जाते हैं और उन्हों का स्वागत दे विच ये दोने DY चंद्रचूड़ भी खड़े होंगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ते उन्हों की पत्नी कल्पना दास। इन्हां ने उन्हों का स्वागत किया, उन्होंने घरे बुलाया। पूजा दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और तुसीं तस्वीरां दे विच ये भी देखा होना कि DY चंद्रचूड़ की इस पूजा दे विच प्रधानमंत्री पूरी महाराष्ट्र की पोशाक पा के आए सी, पूरे कपड़े उस तरह के पाए हुए सी जिस तरह कि महाराष्ट्र दे विच पाए जाते हैं। उस तरह की पोशाक सी, उस तरह की उन्होंने टोपी सी। ते बाद दे विच पूजा करके जो चले गए तो बाद दे विच उही तस्वीरां भारत के प्रधानमंत्री ने अपने X हैंडल तो ट्वीट भी कीतियां या उन्होंने पोस्ट भी किया। अज तक DY चंद्रचूड़ ने या जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, भारत के चीफ जस्टिस ने इस गल का खुलासा नहीं किया कि की उन्हों की पूजा दे विच शामिल होने लई भारत के प्रधानमंत्री खुद आए सी, अपने आप आए सी कि इन्हों ने उन्होंने इनविटेशन दिता सी। देखो जस्टिस मार्कंडे काटजू जिहड़े खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे ने, 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे आ, वो कहते दरअसल DY चंद्रचूड़ बहुत ज़्यादा फंक्शनस करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा देंदे ने, हर जगह कोई ना कोई अपनी स्टेटमेंट देंदे ने। जबकि एक जज नूं कहंदे मेरे वड्डे जजिज ने, सीनियर जजिज ने मैनूं ये गल सिखाई सी कि जे तुसीं जज बनना तो ज़्यादातर अपने घर दे विच सीमित होकर रहो, किसी पार्टी च ना जाओ, किसी फंक्शन ते ना जाओ, क्योंकि जज बनना एक रिक्लूसिव लाइफ, तुहाडी लाइफ जिहड़ा तुहाडा जीवन आ वो बिल्कुल एकांत वाला हो जाता। जिन्ना तुसीं मिलोगे किसी न किसी व्यक्ति दे नाल मिल के तुसीं प्रभावित तो होंगे, तो इस प्रभाव नूं घटाउण लई या दूर रखण लई तुहानूं इकल्ले रहना पऊगा। तो जे तुसीं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहुंदे तो इस जिहड़ी तुसीं जजशिप लई है या तुसीं जज बने हो, इसका इनकार कर दो, इसनूं इग्नोर कर दो या इस तो परे रहो। ये गल उन्होंने कही है, पर की इस तरह सारा कुछ हुंदा। ते नाल ही एक तुहानूं होर भी एग्जाम्पल दूंगा, तुसीं उदाहरण सुनी होनी है और उस मस्जिद का नाम अखबारों के शायद पढ़िया भी होवे। मैं वाराणसी की, जिन्हों पहला बनारस कहा जाता सी और जिथों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतों MP चुने हुए हैं, उत्थे एक मस्जिद आ ज्ञान वापी मस्जिद, बड़ी पुरानी मस्जिद आ और उत्थे रौला ये पिया होया, कहंदे जी इत्थे भी एक मंदिर हुंदा सी। सो अजकल वो मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच गया होया। हुण गल ये आउंदी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले नूं एडमिट ही क्यों किया, क्यों उन्होंने इस गल नूं हुण इस ते फिर जस्टिस या चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ते सवाल खड़े हुंदे ने। मार्कंडे काटजू उन्होंने ये भी गल कही है कि जदों ज्ञान वापी मस्जिद का उत्थे इशू गया तो फिर की इन्हां नूं भुल गया सी कि असीं 1991 दे विच पार्लीमेंट दे विच कानून पास किया होया प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस एक्ट के अनुसार 1947 तो बाद 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हो जाता, उस तो बाद कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट आ उसनूं एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कोई नहीं ये कहेगा कि इत्थे पहला मस्जिद हुंदी सी, कोई नहीं ये कहेगा कि इत्थे तां पहला मंदिर हुंदा सी।
केवल तो केवल एक ही छूट ये दिती गई सी, वो सी राम मंदिर वाली, क्योंकि उस वक्त इस उत्ते हजे फैसला आया नहीं सी ते लगदा 1991 दे विच पार्लीमेंट दे विच इसे करके पास किया गया सी कानून कि इस तो अलावा सारिया जिन्नियां थावां ने जो उन्हां दा स्टैटस को आ जो 1947 तो बाद वो रह गई ने केवल उही रहन। पर तुसीं ज्ञानवापी दे मामले च देख लो, उत्थे जिहड़ी मस्जिद आ ਉਹਨੂੰ किस तरह पहले तो मंदिर कहा गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के विच जाके याचिका या प्रेयर या एक पटीशन ला दी गई कि इस ते भी फैसला होना चाहिए। DY चंद्रचूड़ उस बेंच ते सी ते उन्होंने कहा कि चलो असी इस ते आर्गूमेंट सुनांगे। हुण मार्कंडे काटजू का यही कहना, कहते जब तुहानूं पता कि असी एक कानून बनाता तो फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ नूं की लोड़ पै गई कि इस मामले नूं एडमिट किया जाए। उन्होंने मुढ़ली नज़र दे विच पहली नज़र दे विच इस गल नूं डिसमिस क्यों नहीं किया इस पटीशन नूं कि यह तो तुहाडी एंटरटेन ही नहीं हो सकती, इस दा एडमिट ही नहीं हो सकती। कारण आ कि प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिहड़ा 1991 का, वो तो असीं बना चुके हैं। सो इन्हां सारियां चीज़ां करके कहंदे जी मैनूं यह लग रहा या जिहड़े होर भी बड़े सीनियर लॉयर्स ने या इस जुडिशियल प्रोफैशन के नाल जुड़े ने, उन्होंने यही गल कही है कि की चीफ जस्टिस जदों 10 नवंबर नूं रिटायर हो जाणगे कि वो भी रंजन गोगोई की तरह जिहड़े साबका चीफ जस्टिस रहे ने किते ना किते कोई अहुदा संभाल लैणगे, किते ना किते कोई इस तरह का अहुदा लै लैणगे जिहड़ी कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने देना चाहती होवे। इस गल ते बड़े तरह के सवाल खड़े हुए रहे ने। कहण दा भाव यह आ कि जदों भारत के सिखरली अदालत का चीफ जस्टिस दे उन्हां दी हरकतां, वैसे एक गल मैं तुहानूं होर भी याद करवा दा, आ पिछले दिनों दे विच पिछले हफ्ते तुसीं देखिया होना कि इन्हां ने जिहड़ी वो न्याय मूर्ति हुंदी आ, वो जिन्हों असीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी कह दिंदे आ या अदालतां दे विच हुंदी आ, जिहदी अखां ते पट्टी बन्नी हुंदी आ, इन्हां ने अखां ते वो पट्टी खोलती, जिहदे बारे असीं अक्सर ये कहने आ या अदालतां ये कहंदियां ने कि पट्टी तां काली पट्टी बन्नी जाती है उस मूर्ति ते कि जिहड़ा कानून आ वो बिल्कुल अंधा या कानून जिहड़ा वो बिल्कुल अन्ना इस करके आ कि कानून किसी नाल भेदभाव नहीं करता, केवल तो केवल जिहड़े फैक्ट्स आउंदे ने, केवल तो केवल जो साडा संविधान आ, जो कानून दी किताबां उस दे हिसाब दे नाल फैसला करदा। पर इन्होंने पट्टी खोलती। इत्थे भी जिहड़े बहुत सारे इस तरह के सीनियर वकील ने या इत्थों तक कि जिहड़े जस्टिस मार्कंडे काटजू, वैसे अजकल वो 78 वरियां दे ने, फिर भी अपनी गल कहण दे विच गुरेज नहीं करते। इत्थे भी वो कहंदे दरअसल ये कोई फैसला होया या एक किस तरह की गल हुई कि आपां अखां तो पट्टी ला दिंदे ते इहदे नाल लोकां नूं किते कोई न्याय मिलण लग जूगा, लोकां नूं कोई इंसाफ मिलण लग जूगा। इंसाफ तो लोकां नूं उत्थे मिलना जदों उन्हां नूं बराबर दे अधिकार मिलणगे, जदों उन्हां नूं बराबर दी सिੱਖਿਆ मिलूगी, जदों उन्हां नूं बराबर दे बिजनेस करन दे हक मिलणगे, जदों उन्हां नूं बराबर दे अधिकार हर थां ते मिलणगे, नौकरियां दे विच मिलणगे, जदों उन्हां नूं बेरोज़गारी है जिहड़ी इस तो किसी तरह की निजात मिलूगी। ये आ इंसाफ, ना कि केवल अखां तो पट्टी लाउण दे नाल इंसाफ मिल जाना। इस तरह दी गल्लां कीतियां। वैसे जांदे जांदे क्योंकि इन्हां कोले टेन्योर बहुत वड्डा सी जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोले, ते जांदे जांदे जे कोई इस तरह के फैसले कर जाते जिहड़े भारत लई एक तरह की नज़ीर बन जाते, तो मैनूं लगदा उन्हां दा नाम वाਕਿਆ इतिहास दे विच चला जाना सी, जिवें कि जस्टिस HR खन्ना दा चला गया। उन्होंने डाइसेंटिक नोट ये देता और अपने जाण तो पहला जिहड़ी एमरजेंसी दी उन्होंने वो वर्डिक्ट लिखिया सी या उन्होंने वो ऑर्डर दिता सी, जाण तो पहला अपनी वाइफ नूं HR खन्ना कह के गए सी। जस्टिस HR खन्ना कहंदे जो मैं अज कहण जा रहा अपनी इस जजमेंट दे विच हो सकदा इहदे नाल मैं भारत दा चीफ जस्टिस ना बना, तो वाਕਿਆ वो नहीं सी बने। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया ही है किस तरह जस्टिस MH बेग नूं जिहड़े कि उन्हां तों जूनीयर सी उन्हां नूं आखिरकार चीफ जस्टिस बना दिता गया। अगे चलते हैं, मामला गुरमीत राम रहीम सिंह का भी लै लैने आ, पर उस तो पहला मैं किसानों की गल जरूर करनी चाहूँगा। किसानों की जो हालत इस वक्त पंजाब दे विच होई आ, जो दुर्दशा उन्हां दी रोज़ हो रही है, जबकि मंडियां दे विच एक पासे तो फसल आ रही है, झोना आ रहा, पैडी आ रही है, पर क्योंकि सरकारां ने मौके सिर फैसले नहीं किए, केंद्र सरकार ने थावां नहीं खाली कीतियां, लिफ्टिंग नहीं की, तो किसानों को यह नहीं पता लग रहा या आड़तियां नूं कि असी माल कित्थे लाइए। शैलर वाले ने थोड़े जे मन गए, थोड़े जे हजे नहीं मन्ने। उत्तों इन्हां किसानों नूं DAP जिन्हों असी डाया अमोनीयम फॉस्फेट फर्टिलाइजर खाद आ जिहड़ी बेहद जरूरत हुंदी है किसानी वास्ते, उहदी किन्नी क लोड़ आ या उहदी किन्नी क इस टाइम कमी आ रही है। बार बार किसानों के कहण के बावजूद भी
इस पंजाब सरकार ने वो कमी नूं पूरा नहीं किया। तो इस तो इलावा जिस तरह उन्होंने फसल नहीं विक रही, जिस तरह किसानों नूं देखो इस तरह लग रहा जिथे इस टाइम लोग दिवाली दी तैयारियां करी बैठे आ, सैलीब्रेशनस दी तैयारियां कर रहे हैं, कोई मार्केट्स दे विच जा रहा, बाज़ारां दे विच रौनकां लगियां होईयां ने, लेकिन किसानों नूं इस तरह लगता कि उन्हां दी दिवाली फिर एक बारी काली होने वाली है, क्योंकि उन्होंने लगता जी फसल ही नहीं उन्होंने विक रही। उन्होंने तो धरने लाने पै रहे हैं, कदे आम आदमी पार्टियां के MLA के धरने ला रहे हैं, कदे भारतीय जनता पार्टी के आगुओं नूं घेर रहे हैं, कदे मुख्यमंत्री के आवास वाल वो रुख करते हैं कि उत्थे जाके धरना देइए, शायद उत्थे ही कुछ बन जाए। कोई उन्होंने इस वक्त बांह फड़न नूं तैयार नहीं। और जिस तरह के प्रबंध किए गए हैं, कोई देखो जिस तरह पंजाब सरकार पंजाब सरकार ब्लेम कर रही है या सारे का सारा वो दोष मढ़ रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार कह रही है कि ये खरीदो फरोख्त का काम आ वो तो सूबा सरकार ने करना। तो ये रुल कौन रहा? रुल अज भी किसान रहा, सानू भुलना नहीं चाहिए। अज भी साडा पंजाब खेती प्रधान सूबा, साडी जिहड़ी इकोनॉमी है, साडा जिहड़ा अर्थचारा वो इसे खेती ते चलदा। पर जिस तरह किसान इस वक्त मंडियां दे विच रुल रहा, जिस तरह उन्हों का भुगतान नहीं हो रहा, अपने आप दे विच बहुत हैरान करने वालियां गल्लां ने। दावे तो बहुत किए जाते हैं कि इन्हां दी जिहड़ी देखो जी पैडी की प्रोक्योरमेंट बड़ी समूथ हो जूगी, मीटिंगां कीतियां जांदियां ने। अज ही मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान पढ़ रहा सी कि मैं सारे अफसरां नूं हिदायतां करतीआं, फटाफट खरीद होनी चाहिए है, भुगतान फटाफट होना चाहिए किसानों नूं। पर की जिहड़ी ग्राउंड रियलिटी आ, जमीनी पद्धर की सच्चाई बिल्कुल ठीक है। अगे चलते हैं गुरमीत राम रहीम ते ये आपां नूं सारिआं नूं हुण पता लग ही गया इस सिरसा डेरा मुखी ने कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो स्टे विकेट करता सी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जिहड़ा स्टे लाया होया सी कि इहदे खिलाफ जिहड़े मुकदमे ने उन्हां ते अगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो 2 दिन पहला आपां नूं पता कि वो टुट गई सी, यानी कि पिछले हफ्ते वो टुट गई सी। ते हुण ताज़ा तरीन स्थिति तुहानूं ये भी पता लग गई आ कि पंजाब सरकार ने उस दे खिलाफ जिहड़ी 3 FIR दर्ज होईयां ने उस दे विच मुकदमा चलाउण दी इजाजत दे दित्ती है, सैंक्शन देती है। सैंक्शन इस करके जरूरी होंदी है कि जिहड़ी इंडियन पीनल कोड की धारा 295A आ उस तहत, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव धारा, संवेदनशील आ, आपस दे विच भाईचारिਆਂ दे विच किसी तरह का कोई तनाव ना पैदा हो जाए, क्योंकि ये धारा लगती उदों आ जदों तुसी किसी धर्म की, किसी धर्म ग्रंथ की बेअदबी करते हो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ भी हो सकता कि 2 भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ तनाव पैदा हो जाए, हिंसा पैदा हो जाए। इस करके ये सैंक्शन आनी मुख्य मंत्री तो जरूरी होंदी आ ਜਿਹੜੀ उन्होंने दे दी आ। हुण होना की आ, हुण होएगा कि सारा कुछ क्लीयर होने के बावजूद ये मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, कोर्ट दे विच सुनवाई होएगी। तो जिस तरह की तहकीकात हुण तक हुई आ, जिस तरह की ऑलरेडी तुहानूं पता है कि चलान तक पेश हो गए, पर यह सारा कुछ रोकां लगियां होईयां सी। वो मुकदमा अगे वधेगा तो जो कुछ सबूत ने वो सबूत अदालतों के विच जाणगे। चंडीगढ़ के विच मुकदमा चलेगा और जे ये सबूत सारा कुछ जिहड़ा एविडेंस आ अदालतों में सब कुछ साबित हो गया तो फिर इस गुरमीत राम रहीम नूं, इस सिरसा डेरा मुखी नूं जिहड़ा कि पहला ही बलात्कार की सज़ा भुगत रहा, जिहड़ा कि पहला एक कतल की सज़ा भुगत रहा, फिर इनू इस तरह के बेअदबी के दोषों के विच भी सज़ा हो सकती है। वैसे मैं कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स नाल गलबात कर रहा सी जिन्हां ने इन्हां बेअदबी के केसां की इन्वैस्टिगेशन की, तफ्तीश की, तो उन्होंने कहा कि साडे कोल बेहद मजबूत ने सरकमस्टेंशियल एविडेंस, जो कुछ उन्हां दिनां दे विच घटनावां होईयां उन्हां नूं लैके खास तौर पर जदों तो इन्हां ने फरवरी के महीने दे विच इसे साल प्रदीप कलेर एक बहुत अहम लिंक सी। किसी टाइम ये सिरसा डेरा मुखी का बड़ा क्लोज सी, बड़ा उहदे नेड़े का व्यक्ति सी, जिहड़ी इन्हां दी नैशनल कमेटी बनी हुई आ उहदा ये मैंबर सी। तो इस तरह जिस तरह इन्हां दा एक पोलीटिकल विंग बनिया सी इस सिरसा डेरे का, उहदा भी सन 2014 दे विच प्रधान बन गया सी। इस व्यक्ति ने 164 CRPC जिहड़े मजिस्ट्रेरियल बयान होंदे, मजिस्ट्रेट के अगे होंदे, उस बयान दे विच एक कह दिता या एक कबूल कर लिया। होर भी कई तरह के बयान होए आ कि ये सारी की सारी साजिश सी जो ये डेस्करेशन दे या सैक्रोलेज दे या जिन्हों बेअदबी के केस असीं कहने आ, ये सारे दे सारे गुरमीत राम रहीम दे कहण ते होए सी। ते जिहड़ी उहदी मूँह बोली कुड़ी आ जिन्हों अडॉप्ट किया होया हनीप्रीत कौर, वो भी उत्थे सी ते उसने ही उहदियां हिदायतां ते ये सारा कुछ होया। बल्कि एक सारा कुछ इन्हें दस्सिया भी सी
कि सन 2015 की गल आ, जो मैनू अचानक दिल्ली गया मैं, या दिल्ली मैनू बुलाया गया तो उत्थे हनीप्रीत भी सी ते होर भी कई व्यक्ति बैठे सी, जिन्हां दे विच एक राकेश दिरबा सी, जिहदे विच एक हर्ष धूरी सी, संदीप बरेटा सी, इस तरह महेंद्रपाल बिट्टू सी ते होर भी कई तरह इस तरह के व्यक्ति सी। दरअसल उन्हां दिनां दे विच होया की सी कि उत्थे हरजिंदर सिंह मांझी नाम का एक व्यक्ति सी, वो किसी इकट्ठ नूं संबोधन कर रहा सी, तो उन्हें दस्सिया कि किस तरह सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम लोगों को मूर्ख बनाउंदा ते सानू इहदे पिछे नहीं लगना चाहिए। उस इकट्ठ दे विच लोकां ने अपने लॉकट ला के सुट्टे, उन्हां लॉकटां दे विच इसे गुरमीत राम रहीम की फोटो सी, जिस गल तो ये बहुत ज़्यादा भड़क गए या बहुत ज़्यादा डर गए, तो फिर इन्हां ने ये सारी जिहड़ी साजिश आ वो रची आ। गुरमीत राम रहीम इसे रिपोर्ट के अनुसार उत्थे मौजूद सी, ये सारा कुछ इन्वैसटीगेशन का हिस्सा। तो बाद दे विच कई लोगों के इन्हां दे बयान भी होए आ, 164 दे विच बयान होए आ। सो पुलिस नूं किते ना किते लगदा कि ये जिहड़ा व्यक्ति आ, वैसे मैं ये भी दसदा कि प्रदीप कलेर लगभग 8 साल ये भज्जिया रहा, प्रोकलेम्ड अफेंडर ये सीगा, पीओ इनू डिकलेयर करता सी। ये तो यूपी दे विच एक मंत्री दे नाल, उत्थों दे मंत्री दे नाल फोटो दे विच नज़र आ गया। बाद दे विच खैर पंजाब पुलिस गई तो गुड़गांव तो इनू गिरफ्तार किया सी इसे साल फरवरी के महीने दे विच। हुण देखदे आ कि की जिहड़ी ये पुलिस आ अपनी तफ्तीश नूं, ये भी मैं तुहानूं दसदा कि सन 2022 दे विच 467 पन्नियां दी ये पूरी तफ्तीश की रिपोर्ट, चलान दी कापियां, सारा कुछ ये पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान नूं भी दित्ती जा चुकी है। इस तरह कुछ सिख जथेबंदियों के आगूआं नूं भी ये रिपोर्ट उन्हां दिनां दे विच ही दे दित्ती गई सी, सारी दी सारी तफ्तीश की। ते उस तो बाद तुहानूं पता है कि ये सारा मामला अदालतां दे विच या अदालतां दी जिहड़ियां प्रक्रियावां हुंदियां ने उन्हां दे विच फस के रह गया सी। उम्मीद करते हैं हुण कि डे टू डे बेसिस ते जे अदालतां चाहणगियां कि इसकी जिहड़ी सुनवाई होवे, ट्रायल चले, ताकि जिहड़ा दुੱਧ दा दुੱਧ ते पानी दा पानी होवे, ते जे वाकया ये गुरमीत राम रहीम ने या इहदे पैरोकारां ने या इहदे समर्थकां ने इस तरह दी बेअदबियां करके पंजाब दा माहौल विगाड़न की कोशिश कीती आ, तो फिर मैनूं लगदा अदालत नूं इस गल दा किते ना किते तां कॉगनीजेंस लैके ते फिर सज़ावां सुणाउणीਆਂ पैणगीਆਂ। तुसीं देख रहे सी कनैक्ट शीशा, मैं मनप्रीत रंधावा।